Hello guys, Nahid here. In today's class, we'll be discussing chapter 2 of History of Class 10, that is Environment and Environmental Problems. Let's look at the key points that we have in this chapter. Firstly, we'll learn what is the meaning of environment, then we'll look at various environmental problems, and lastly, we will take some of these problems and like pollution, desertification, global warming, and we'll discuss all these things in detail. So let's just begin with the introduction. So let's look at the introduction. The environment as a theme has drawn utmost attention in the contemporary period. It means environment, the concept of environment, it has drawn people's attention in the contemporary world, which I could say that in the last 200 years. Although this term had been there for a very long period of time. This is not a new term. It was there for a very long period of time. It was already there, but it has gotten importance in the contemporary period, which is like some 200-300 years ago. And now it has acquired some spatial importance. Environment is a very spatial subject nowadays. Presently, almost in all kinds of academic, which means in all kinds of books of different classes, you would have a concept about environment. And we have administrative and administrative strategies departments consulting environment. We have commercial and political discussions on environmental issues. Many times we see these things in the TV news channels. The issues relating to environment have become very common these days, and they are referred very commonly nowadays. Okay, so what's more? Let's find out. That the environment problem has distributed people in almost all parts of the world have been currently in media. It means the problem, environmental problems, it is distributed in all parts of the world, and we know it through media, through television, through newspaper, through magazines. We know that everyone around the world is somehow under the clutch of environmental issues nowadays. All kinds of media are seen putting more emphasis on the environmental issues. All kind of media, printing, and then you have TV, you have internet. Everything is just, showcasing more, giving more importance to environmental issues, because it has become important. It has been seen that unless people become aware, environmental problems cannot be confronted. That we should keep the environment healthy has become goal and objective for all of us nowadays. To keep environment healthy, and this has become goal and objective for almost every one of us. Now, necessary importance for environmental education has also been given in school and college curricula. This I already talked about, that the environment as a subject has become very important. It's in the academics, and because of that, in schools and colleges, in their curriculum, environmental studies have been made mandatory for the students to go through, so the students have an understanding about what these problems are. The meaning of environment. In a broad sense, environment denotes the condition around an organism or a community of organisms. So what is an environment? Environment means the condition around one organism or a group of organisms. So we are organism like everything that's there in the biosphere: flora, fauna, animals, the plants, and human beings, and the surrounding of all these things together can be referred as environment. Such a condition includes all necessary elements for survival. As you can see here, such a condition would demand that you have everything that is necessary for your survival, for human being survival. So we live in an environment where as organisms we have everything else that through which we can survive. These elements are both biotic and abiotic. So we get two types of elements here. One is biotic element and the other one is abiotic element. Now question comes, what is biotic and what is abiotic? See, biotic means things that have life, all sort of plants and animals. So all sort of plants and animals that we have on planet Earth,
from microbes to large mammal, from very tiny thing to a large thing, everything that has life, plants, animals, we can categorize them as biotic. On the other hand, land, water, air, and all kind of lifeless element fall under the category of abiotic, abiotic elements. So जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो लाइफलेस चीज़ें हैं, जैसे लैंड हो गया, एयर, वाटर, अदर थिंग्स, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ abiotic elements. Okay, now these biotic and abiotic elements through their interaction create necessary condition for or environment for life. So when these biotic and abiotic elements come together, contradict with one another, when a thing with life comes and interacts with a thing which doesn't have a life, when biotic meets abiotic, it actually creates, because of the interaction, it actually creates the condition. And in other words, you can say it creates environment for life. It creates environment for life. That's what we say an environment is. In other words, each and every organism or community of organisms depend upon the condition around. So each and every organism, we can say, or the entire community of organisms, they depend upon the condition that they have surrounding them. So what's their condition, what it is like, what do they have biotic there, what do they have abiotic there, what's the food chain, who is depending on who. All these things come together, collide together, and because of that, it creates a suitable condition for all the things to survive together, and that condition, that surrounding, can be broadly referred as environment. Okay, let's look at this. In other words, each and every organism community, depend upon, I have said it already. Thus, organisms are also constituents of their environment. So you cannot say that organisms are also a part of environment. Without the organisms, environment cannot run. So they're like the same part. Human beings are also an organism, and they also depend on the environment around. So we are an organism, everybody knows that, and we depend upon the environments that's surrounding us. The meaning of environment, so to say, it's very wide, बहुत ज़्यादा बड़ा है, and it's very complex to understand from the geographical point of view, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा subject है. But let's try to understand it. In order for us to understand the major spheres that we have in the environment, they could be referred as lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. इन चारों spheres को अगर हम समझ जाएं, तो almost जो है environment क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा बहुत समझ तो सकते हैं. Okay, these spheres are interconnected. ये जो चार spheres का मैंने बात किया, all of them are interconnected. ये सब एक दूसरे से connected है. The condition created by the interaction among them may broadly be called environment. इन चारों के बीच में जो interaction होता है और interaction के वजह से जो condition create होता है या फिर जो वातावरण create होता है, that could be referred as environment. Okay, here we will know about a famous geographer. His name is Peter Haggett. So Peter Haggett जो है, what does he say about environment? Peter Haggett says that the environment is an outcome of the interaction among land, water, air and life. He says environment, in order to understand, environment is just the interaction among these things. When land interacts with water, water interacts with air and air interacts with life, we can say that it's an environment happens. Environment, environment का जन्म होता है. In this sense, the Earth's environment is a vast and complicated system. अगर हम इस चीज़ को समझे that interaction होता है land, water, air and life के बीच में, then we would know that the Earth का जो environment है बहुत बड़ा चीज़ है, and it is a very complicated system. Let's read more. Within such a vast system,
द लोकल एंड रीजनल एनवायरनमेंट्स हैव बीन फंक्शनिंग। ये जो बड़ा एक एनवायरनमेंट है, पूरा ग्लोब को अगर हम ले लें, इसके अंदर में और भी एनवायरनमेंटल सिस्टम्स हैं। जैसे लोकल एनवायरनमेंटल सिस्टम होता है, मान लो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, एंड रीजनल कुड बी द नेशनल environments that we have. It means environments of all the localities are the constituents of the vast global environmental system. तो सब ये मिला के local and regional मिला के ये सब जो है global environmental system का एक हिस्सा है. They are a part of this. This is what you need to remember. Okay. अब जब हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो गया है, लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 4 पार्ट्स क्वाइट स्लोली. फर्स्ट इज लिथोस्फेयर. वैसे तो यू हैव बीन रीडिंग लिथोस्फेयर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. लिथोस्फेयर को तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं. नाउ द लैंड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ में जो लैंड है, ज़मीन जो है, वो किस, उसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है. इन द लैंड we find rocks, soil, minerals, etc. तो ये सब चीज़ मिला के ही बनता है लिथोस्फेयर. तो अलग शब्दों में कहूँ तो जो ज़मीन है जिसके ऊपर फ़िलहाल तुम बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, दैट इज़ लिथोस्फेयर. ज़मीन, लैंड, जहाँ पे रॉक्स है, सोयल है, मिनरल्स है, उसी को लिथोस्फेयर कहते हैं. लिथोस्फेयर कवर्स ऑल द कॉन्टिनेंट्स वेयर वी फाइंड. लिथोस्फेयर जो है पूरा जितना भी कॉन्टिनेंट है सबको कवर करता है. वी हैव मेनी कॉन्टिनेंट्स, वी ऑलरेडी नो. एंड इट कवर्स एवरी अदर फिजियोग्राफिक फीचर ऑन इट. जैसे माउंटेन ले लो, हिल्स, प्लेटो, प्लेन, वैली, कोस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं लिथोस्फेयर में ही हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिथोस्फेयर एंड इट्स चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द अदर 3 कंपोनेंट्स. कोई भी एक चेंज अगर लिथोस्फेयर में आता है, ठीक है, उसका चेंज जो है बाकी तीनों स्फेयर के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर हाइड्रोस्फेयर में चेंज आता है तो उसमें लिथोस्फेयर में चेंज आएगा. अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आता है देन ऑल्सो इन लिथोस्फेयर में चेंज आएगा. बायोस्फेयर में चेंज आएगा तो उसमें भी चेंज आएगा. एज आई सेड प्रीवियसली दैट दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड ऑफ द अर्थ्स एनवायरमेंटल सिस्टम. सो इन ऑर्डर टू लाइक ब्रिंग एनी चेंज इन लिथोस्फेयर, there will be a change in all the other spheres as well, because they all are connected to one another. It's like a system like this. Now that we know lithosphere, ज़मीन होता है, इसमें माउंटेन, हिल, प्लेटो, कॉन्टिनेंट में जितनी चीज़ें होते हैं, रॉक, सॉइल, सब रहता है. We will now go and try to understand हाइड्रोस्फेयर क्या चीज़ है. The sea, the ocean have formed the Earth's hydrosphere. हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी. एक शब्द में बोलो तो हाइड्रोस्फेयर का मतलब है पानी. तो पृथ्वी में जितनी जगह पानी, वी ऑल नो लैंड जो है 29% और बाकी जो 71% है वो पानी है. तो पानी में क्या क्या चीज़ें हैं? सी एंड ओशंस आते हैं, रिवर और बाकी जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ऑल दीज कम अंडर हाइड्रोस्फेयर. जितना भी पानी है, लिथोस्फेयर को छोड़कर क्या मिलेगा? पानी मिलेगा. तो पानी मीन्स हाइड्रोस्फेयर. एंड इट कवर्स लाइक 71% ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ का 71% ये कवर करता है. इसमें क्या क्या आता है? रिवर, लेक्स एंड बाकी और भी वाटर बॉडीज जो हैं. सी, ओशन तो मैंने बोला ही है, बाकी लेक्स, बिल्स, पॉन्ड्स, ये सब इसमें आते हैं. दैट आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट्स. दे ऑल आर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर. इसीलिए पहले लिथोस्फेयर में हमने कहा था कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन लिथोस्फेयर, देयर हैज़ टू बी अ चेंज इन हाइड्रोस्फेयर, बिकॉज लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर आर कनेक्टेड टू वन अनदर. ओके, द स्टेटस एंड चेंज इन द हाइड्रोस्फेयर डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द चेंज ऑफ द ऑल द अदर स्फेयर्स. बिल्कुल सेम है उसके जैसा कि हाइड्रोस्फेयर में अगर कोई भी चेंज आता है तो बाकी जितने भी स्फेयर्स हैं उसमें भी थोड़ा बहुत कोई ना कोई चेंज डेफिनेटली आएगा. अब हम पढ़ेंगे तीसरे लेयर को, जो कि है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को अभी हम पढ़ेंगे. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड एक्सटेंड्स अ गैसियस लेयर. अर्थ का सरफेस मतलब जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ एक गैस का लेयर जाता है. ठीक है, बहुत सारे गैसेस रहते हैं. इसमें कौन से गैसेस पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. ये सारे गैस का एक लेयर होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पे फ़िलहाल हम लोग जो है बैठे हुए हैं. इसी लेयर को
एक साथ में हम इसी लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। और इसके वजह से ही ये एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर बायोटिक चीज़ों के लिए ब्रीदेबल है, लिवेबल है, हम जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड दिस एटमॉस्फेयर डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर प्लैनेट so far as scientists are still looking into it. Atmosphere extends broadly to a height of about 10,000 kilometers from the surface of the earth. Atmosphere जो है वो broadly मैं बात करूँ तो 10,000 किलोमीटर, ठीक है, 10,000 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ जाता है। सरफेस लेवल से ऊपर की तरफ पूरा 10,000 किलोमीटर तक अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे एक गैस का लेयर मिलेगा हमें। एंड इस गैस के लेयर को ब्रॉडली हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से it is atmosphere. The characteristics and change of the atmosphere, again वही सेम बात यहाँ पे बोला गया है, किसी भी तरह का चेंज अगर एटमॉस्फेयर में आता है it will depend on the other three components, मतलब बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, उसमें चेंज आना पड़ेगा बिकॉज it is interconnected, interlinked. अब इतना नॉलेज हो गया है तो बायोस्फेयर को पढ़ते हैं। बायोस्फेयर इज अ बिग टॉपिक हियर एज यू कैन सी, उसको हमें बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। So biosphere covers those parts of the Earth's environment where life forms occur. Biosphere वो सारी जगह कवर करता है जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर जो है लाइफ फॉर्म ओकर होता है, जहाँ पे एक्चुअल में लिविंग बींग्स रहते हैं, पंछियाँ जहाँ पे उड़ते हैं, तुम और मैं जहाँ पे रहते हैं, एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पर उगते हैं, इसको हम लिटरली कह सकते हैं कि इट्स दी बायोस्फेयर। These includes the earth surface, इसका मतलब है अर्थ सरफेस इसमें इंक्लूडेड है। Down to few meters from the earth surface we have seas, we have oceans and the lower stratum of the atmosphere where birds and insects fly. तो मान लो कुछ किलोमीटर ऊपर तक, एक आध 2-3 किलोमीटर ऊपर तक, जहाँ तक हम बर्ड्स इन सारी चीज़ों को फ्लाई करते हुए देख सकते हैं, इसी यही जो एरिया है जो इट्स देयर इन द एटमॉस्फेयर, इसी को बायोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे सब तरह के लाइफ फॉर्म्स, यहाँ जो मैंने पहले बोला था, सब तरह के लाइफ फॉर्म्स जो ओकर होते हैं, इसी को हम जो है बायोस्फेयर कहते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, इट्स क्वाइट ह्यूज एंड बिग, हम इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सो फार अब तक जो है यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो स्पीशीज़ हैं, करीबन 1.75 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो बायोस्फेयर में है। और अभी भी ऐसे बहुत से स्पीशीज़ हैं जिनको जो है आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इन सब में से जो टॉप मोस्ट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ऑफ दीज, वो है ह्यूमन बींग्स, जो एक स्पीशीज़ से आए हैं जिसका नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से ह्यूमन बींग्स आए हैं, मंकीज़ से हम लोग आए हैं। दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। 11-12 में हिस्ट्री लेने से ओबियसली होमो सेपियंस के बारे में डिटेल में मिलेगा। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो ये जो स्पीशीज़ है 1.75 मिलियन स्पीशीज़ अब तक रिकग्नाइज़ किए गए हैं। बहुत से ऐसे स्पीशीज़ है जो रिकग्नाइज़ करना अभी भी बाकी है। एंड इसमें से होमो सेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं, दे आर एट द टॉप ऑफ द चेन। इतना तो जान गए, आगे बढ़ेंगे। It has been mentioned already that the 4 major spheres of the Earth's environment are interdependent. हमें तो पता ही है ये सब interdependent है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक में बदलाव आएगा तो दूसरे के ऊपर बदलाव आएगा, बिल्कुल फैमिली के जैसे। पापा के ऊपर प्रेशर आएगा तो मम्मी के ऊपर प्रेशर आएगा, मम्मी के ऊपर आएगा तो बच्चों के ऊपर आएगा। सिमिलरली तुम्हारे ऊपर आएगा प्रेशर तो तुम्हारे मम्मी के ऊपर जाएगा, मम्मी परेशान तो पापा परेशान, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड। The interactions among them have given rise to what we call environment. इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो 4 स्पेयर हैं, इन इंटरेक्शन की वजह से ही जो सिचुएशन क्रिएट होता है या फिर आई वुड से जो कंडीशन क्रिएट होता है, दैट्स कॉल्ड एनवायरनमेंट, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। Innumerable elements of these spheres through a complicated network of relationship have determined the Earth's present environment. तो ये जो है innumerable एलिमेंट्स हैं पूरे इन 4 स्पेयर्स में, एंड ये सब एक साथ जो है जब आके टकराते हैं एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एंड इसकी वजह से ही अर्थ का जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है वो पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, और ये बहुत यूनिक बात है और ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बात है कि इस प्लैनेट में ऐसा हो पाया है, किसी और प्लैनेट में ऐसा नहीं हो रहा है। दैट्स क्वाइट स्पिरिचुअल एंड मोस्टली इट्स साइंटिफिक। ओके,
द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग बोथ इन टर्म ऑफ स्पेस एंड टाइम। एनवायरनमेंट जो है वो दिन ब दिन बदल रहा है। स्पेस जगह जो है, हम सब जानते हैं, पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम पढ़ के आए हैं कि पहले जो है पूरा अर्थ जो है वाज लाइक एन आइलैंड और चारों तरफ सिर्फ लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, एंड फिर टाइम के साथ वो ब्रेक हो गया, एंड उसमें मैं अभी जाऊंगा नहीं। सो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है विथ टाइम एंड स्पेस। जो एनवायरनमेंट हम पहले ज़माने में लोगों का था, अब वो है नहीं। टाइम एंड स्पेस के साथ पूरा एनवायरनमेंट जो ये चीज़ है ये कॉन्स्टेंटली इट्स अंडरगोइंग अ ट्रिमेंडस चेंज। ओके, लेट्स सी दिस पार्ट नाउ। ईच ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अलग बात है यहाँ पे, in geography there are many regions, there are many continents, some are in the south, some are in the I would say in the east, in the north, in the west, and सबके अलग अलग characteristics हैं। geographically सब सेम नहीं है, although वो सबके सब एक दूसरे से connected है, but they are not same. The quality of the natural elements varies from region to region. जो क्वालिटी ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स, किसी एक जगह में नेचुरल एलिमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, किसी एक जगह में कम हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दे से दैट इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। एक इलाके से दूसरे इलाके में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे जो नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, एनिमल्स क्यों ना हो, एंड ह्यूमन्स के जो फूड हैबिट्स उनके अराउंड डेवलप होते हैं वो भी अलग होते हैं। देयर आर रीजनल वेरिएशंस विद रिस्पेक्ट टू लैंड, वाटर, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेरिएशन में क्या क्या चीज़ें आता है? ज़मीन, उसमें डिफरेंस दिखेगा। वाटर डिफरेंस दिखेगा, किसी में ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी जगह में ज़मीन ज़्यादा होगा, किसी जगह में कम होगा, उस जगह का क्लाइमेट अलग होगा। एंड वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, जो सब्जियाँ वगैरह जो पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं वो अलग हो सकता है। एंड वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अलग हो सकता है। ओके, द नेचुरल एनवायरनमेंट of the places close to the equator is significantly different from that of the polar region. इक्वेटर मान लो, ठीक है, पृथ्वी के ऑलमोस्ट बीचों बीच में से यहाँ पे जो इलाके हैं, ठीक है, ऐसे मान लो इक्वेटर के पास में जो इलाके हैं वहाँ के जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और ये जो ऊपर में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पे जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो टोटली अलग है। यही यहाँ पे बोला गया, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग है। प्लेसेस जो हैं वो अलग हैं, उनका नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो भी अलग है। अगर हम पोलर एरियाज़ की बात करें और उसी के साथ में इक्वेटर के पास के इलाकों की बात करें, जो मैंने अभी यहाँ पे काइंड ऑफ ड्रॉ करके मैंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। द एनवायरनमेंट ऑफ द डेजर्ट्स आर अगेन डिफरेंट। और डेजर्ट्स जो है उधर का एनवायरनमेंट तो बिल्कुल ही अलग है, ड्राई रहता है, सबको पता है। द एनवायरनमेंट ऑफ द रिवर वैलीज वो भी अलग है, डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द कोस्टल एरियाज। रिवर के आसपास के जो इलाके हैं उसका जो एनवायरनमेंट और कोस्टल एरियाज के आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट्स टोटली डिफरेंट। दस द डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। और तो जियोग्राफिकल डिफरेंस की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब एनवायरनमेंट हर जगह में सेम नहीं होते। एक जगह में एनवायरनमेंट बहुत ही ख़ास हो सकता है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। दूसरे जगह में वो बिल्कुल ही अलग हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो वहाँ से दूसरी जगह से कम होंगे। वहाँ का वेदर अलग रह सकता है, वहाँ का वेजिटेशन अलग रह सकता है, वाटर, लैंड, सब कुछ अलग हो सकता है वहाँ पे। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि एनवायरनमेंट जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। उसके बाद चेंजेस ओकर विद इन, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं चेंजेस ओकर विद इन सेम एनवायरनमेंट इन कोर्स ऑफ टाइम। एक ही एनवायरनमेंट में, ठीक है, कोर्स ऑफ टाइम में चेंज आ सकता है। सपोज जो हमारा वैली है जहाँ पे भी तुम रहते हो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है दैट कैन ऑल्सो चेंज विद द कोर्स ऑफ टाइम, बदल जाएगा, वो सेम नहीं है। टू वेरीफाई दैट यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ द एनवायरनमेंट वाज in your place some like 10 years ago or say 30 years ago, at least 30 years का पूछो तो एक क्लियर डेफिनेशन मिलेगा। तो वो बिल्कुल ही अलग बोलेंगे जो आज का है, and you can draw some distinctions from there. 100 years back from now the environment of Brahmaputra and Barak Valley were notably different. Obviously ब्रह्मपुत्रा एंड बराक जो वैली है, असम के दो ही बड़े रिवर हैं, एक ब्रह्मपुत्रा है और एक बराक वैली है, बराक रिवर है।
तो अगर 100 साल पीछे हम चले जाएँ तो हम क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र और बलाक जो ये वैलीज़ हैं, इसका जो एनवायरनमेंट था 100 साल पहले वो बहुत अलग है, और आज के टाइम पर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अभी रोल प्ले करते हैं। फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना, लोगों का ज़्यादा जन्म लेना। सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बनाना, इंडस्ट्रियलाइज होना, एम्प्लॉयमेंट, ये सब। एंड अर्बनाइजेशन मीन्स गाँव छोड़ के शहर की तरफ जाना, जिसकी वजह से स्लम्स एंड एरियाज जो है क्राउडेड हो जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब रास्ते ज़्यादा बने, कम्युनिकेशन ज़्यादा। पहले ज़माने में लोग या तो पैदल जाते थे या फिर नाव से जाते थे, तो अब तो जो रास्ते बन गए, प्लेन बन गया, बहुत तरीके के कम्युनिकेशन बन गए। फिर मोटर व्हीकल्स आ गए हैं, जैसे बाइक आ गया है, कार आ गए हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर द रैपिड चेंज ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट। सो ये सब जो हैं चीज़ें एक साथ में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ अर्थ्स एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन बढ़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, अर्बनाइजेशन होना, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ना, इन सब की वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट जो है इट इज़ चेंजिंग। उसके साथ द श्रिंकेज इन फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर, श्रिंकेज का मतलब है छोटा हो जाना। फॉरेस्ट कवर जो है वो दिन ब दिन छोटा हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं। पीपल आर मेकिंग मोर हाउसेज, पीपल आर मेकिंग मोर इंडस्ट्रीज। सो ओबियसली कहाँ पे बनाएंगे, ज़मीन पे बनाएंगे। ज़मीन पे बनाएंगे तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट होगा, उसको तो काटना होगा। देन वेटलैंड्स, जो भीगी हुई ज़मीन रहते हैं, वो भी कम रहा है। एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बायोस्फीयर इज़ ऑल्सो एविडेंट। बायोस्फीयर के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नाउ विद जस्ट अ सेकंड, okay, I think we cannot do that. So with the spread of population and human activities to the mountainous and the desert areas as well, such areas have experienced rapid environmental change. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, जो माउंटेनस एरियाज से डेजर्ट एरियाज जो हैं इसमें हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रैपिड एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। ये जो डेजर्ट्स का बनना या फिर किसी एरिया का डेजर्टिफिकेशन हो जाना, मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है डेजर्ट में एंड डेजर्टिफिकेशन में, बिकॉज इसी चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन है। तो उसकी वजह से बहुत सारा जो है एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं। यू सी, अंडर सच सर्कमस्टांसेस द स्टडी एंड द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैव एक्वायर्ड एडेड इम्पोर्टेंस। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी ज़रूरी है, प्रॉपर रिसर्च ज़रूरी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंजर्वेशन ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्स को बचाना पड़ेगा, अदरवाइज वन डे वी विल रन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ एग्जिस्टेंस अभी ख़तरे में आ गया है। सो विद दैट I conclude my video here. In the next video I'll discuss what are environmental problems. Thanks very much for watching, and for notes and any kind of like contacting me, अगर notes चाहिए, कुछ और चाहिए, subscribe to my Telegram channel. Alright, I'll see you with the next video. Bye bye.